I know what the caged bird feels last. When the sun is bright on the upland slopes, when the wind stirs soft through the springing grass, and the river flows like a stream of glass, when the first bird sings and the first bird opes, and the faint perfume from its chalice steals, I know what the caged bird feels. I know why the caged bird beats his wing till its blood is red on the cruel boughs. For he must fly back to his perch and cling when he fain would be on the bow a swing. And the pain still throbs in the old scars, and the pulse keen with the keener sting. I know why he beats his wing. I know why the caged bird sings me when his wing is bruised and his bosom so when he beats his paw and he would be free. It's not a carol of joy or glee, but a prayer that he sends from his heart's deep core, but a plea that upward to heaven he flings. I know why the caged bird sings. Friends, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. So, Sympathy. This poem is written by Paul Laurence Dunbar. And when we are talking about this poem describes a terrible experience of being a bird stuck in a cage. Sympathy is all about wishing for freedom and hating on confinement. And this poem consists of 3 stanzas and it contains 7 lines in each stanza. So this image is of Paul Laurence Dunbar, and he was born on June 27, 1872 to freed slaves from Kentucky. He became one of the first influential black poet in American literature. Okay, considering that Paul Laurence Dunbar was an African American poet writing at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, and his poem Sympathy was published in his 1899 collection Lyrics of the Hard Side. It's quite likely that this poor bird operation represents the operation of all African American during this period. एंड इन हिंदी वी कैन से कि ये जो पोएम है सिंपैथी की जो हम बात कर रहे हैं इस पोएम की, ऑल्दो ये पोएम जो है वो रिवॉल्व कर रही है एक चिड़िया के लिए, एक चिड़िया के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जो इस पोएम में शो कर रही है कि एक चिड़िया कितना स्ट्रगल कर रही है एक पिंजरे से बाहर आने के लिए. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉल लॉरेंस डनबर, तो जो ये पोएट थे ये कहीं कि बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएट रहे और ये अमेरिकन साइड से, ऑल्दो ये अफ्रीकन थे बट बिकॉज ऑफ इस कलर, बिकॉज ऑफ रेसिज्म, जो कलर का जो भेदभाव होता था उसके चलते उन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया कि लोग कैसे ऑल्दो ये सेम थे हर तरीके से बट कैसे उनको कलर के बेसिस पे जज किया जाता था. उन्हें वोट करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें किसी भी तरह का कोई फ्रीडम नहीं था. तो उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को एक चिड़िया से कंपेयर किया और उन्होंने बताया कि चिड़िया कैसे एक पिंजरे से बाहर आने के लिए फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती है, ठीक उसी तरह जैसे वो इस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लाइफ में अपने अस्तित्व के लिए फाइट कर रहे थे और बहुत कोशिश कर रहे थे. In other words, the speaker of the poem uses the image of the locked bird to give us a sense of what it feels like to live without freedom. And judging from bird's experience, the fun is zero. Its fun is zero. Okay. So I already told you guys that this poem consists of 3 stanzas. Okay. And in each stanza we are going to face 7 lines. So let's get started. I know what a caged bird feels, alas, when the sun is bright on the upland slopes, when the wind stirs soft through the spring grass, and the river flows like a stream of glass, when the first bird sings and the first bird opes, and the faint perfume from its chalice steals. I know what a caged bird feels. तो यहाँ पे जो राइटर ने जो फर्स्ट स्टैंजा शो करने की कोशिश की है, इन दिस स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट अ केज्ड बर्ड, एक चिड़िया जो अपने पिंजरे में कैद है और वो कंपेयर करते हैं खुद से कि मुझे पता है कि एक पिंजरे में बंद रहना क्या होता है. अल्लाह कहीं ना कहीं सौरव शो कर रहा है कि बहुत दुखी बात है कि मुझे ये बात पता है कि एक चिड़िया के लिए पिंजरे में बंद रहना कितना दुखी पल होता है. जब सूरज चमक रहा हो, जो वो पहाड़ियों से निकल रहा हो, पहाड़ियों की स्लोप से जब वो ऊपर जा रहा हो
और बहुत तेज़ी से चमक रहा हो। जब चिड़िया उसे देखती तो चिड़िया क्या करती है, मॉर्निंग टाइम में जब भी मॉर्निंग होती है तो हम देखते हैं चिड़िया चहकती है, आसमानों में घूमती है, फिरती है, उड़ती है। बट अगर कोई चिड़िया पिंजरे में है तो वो सिर्फ देख सकती है, छिटपटा सकती है, बट वो उड़ नहीं सकती है। When the wind stirs soft through the springing grass, जो घासें जो उगी हुई हैं और जब हवा उन्हें टच करके निकलती है, वो सिर्फ उन्हें देख सकती है पर उनके पास जाके महसूस नहीं कर सकती है। And the river flows like a stream of glass when the first bird sings and the first bird opes, जब चिड़िया पहली बार गाना गाती है और जब पहली बार कोई कली खिलती है। And the faint perfume from its chalice steals, I know what the caged bird feels. तो कह रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा जो कप होता है और उसमें से जैसे एक परफ्यूम जो चारों तरफ फैल जाती है और वो उसको महसूस नहीं कर सकती, सिर्फ देख सकती है, एक पिंजरे में बंद होकर उसके इर्द गिर्द नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे राइटर खुद से कंपेयर कर रहा है कि मुझे पता है कि एक चिड़िया पिंजरे में कैसा महसूस करती है, बिकॉज समवेयर इन दिस स्ट्रेंजर ही वांट्स टू शो हिज डिज़ायर्स, हिज एक्सपीरियंस, हिज डिज़ायर्स टू गेट फ्रीडम। यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि वो ऑल्दो एक अमेरिकन सिटी में रह रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर ही बिलोंग फ्रॉम एन अफ्रीकन कंट्री। तो कहीं ना कहीं अपने कलर की वजह से जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो फ्रीडम नहीं मिल रही है। वो सब कुछ देख तो सकते हैं पर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उस तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए क्या हो रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक चिड़िया की स्टार्टिंग से उसकी फर्स्ट मॉर्निंग से कंपेयर किया है खुद की लाइफ को। मूविंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, आई नो वाई द केज बर्ड बीट्स हिज विंग, मुझे पता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया अपने पंख को क्यों फड़फड़ा रही, क्यों बीट कर रही है। टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूअल बार्स, और तब तक फड़फड़ाती है अपने पंख को जब तक उसके पंख से जो ब्लड निकल रहा है, जो खून निकल रहा है, वो पिंजरे के जो तार हैं, जो बार से जिसने पिंजरे को बांध रखा है, उस पर ब्लड ना आ जाए। फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लेम, ताकि वो वापस उड़ सके और शिकार कर सके। When he fain would be on the bow or swing, and a pain still throbs in the old scars, and they pulse again with a keener sting. I know why he beats his wing. तो यहाँ पे राइटर ने जब खुद को कंपेयर किया तो वो कह रहा है कि वो फिर से उड़ना चाहती है, फिर से उस खुशी को, उसको बहुत खुशी से वो हर एक चीज़ को झूलना चाहती है, अपने शिकार को पकड़ना चाहती है। बट कहीं ना कहीं वो जो उसके जो पुराने जो घाव हैं वो कहीं ना कहीं उसको फिर से एक बार उसी जगह पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं। तो इन द सेंस ऑफ बर्ड, वो फ्लाई करना चाहती है, वो उड़ना चाहती है, जस्ट लाइक द पोएट। यहाँ पे पोएट भी कह रहा है कि वो बहुत सी चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं और उसके लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर वो जो कोशिश है वो क्या हो रही है, नाकाम हो रही है, वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक चिड़िया जो है वो सब कुछ जान रही है, देख रही है, कोशिश भी कर रही है, और उस कोशिश में वो अपने पंखों को फड़फड़ा के उसमें से ब्लड भी आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं पिंजरे की बार्स में लग भी जा रहे हैं, बट ऑल दो उसके बाद भी उसे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर राइटर लास्ट सेकेंड स्टैंजर की लास्ट लाइन में कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो अपने पंख को क्यों फड़फड़ा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटर ने एक चिड़िया से खुद को कंपेयर किया। Now in the last stanza, I know why the cage bird sings me. मुझे पता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया क्यों गा रही है। पहली बार में क्या था कि उन्होंने महसूस करना की कोशिश की कि एक चिड़िया, पहले स्टेज में उन्होंने बताया कि एक चिड़िया क्या फील कर रही है, जिससे उन्होंने अपने फीलिंग को कंपेयर किया था कि वो उड़ना चाहती है, वो सूरज की पहली किरणों को देखना चाहती है, उसे फील करना चाहती है, स्प्रिंगिंग ग्रास पे चलना चाहती है, उड़ना चाहती है। सेकेंड स्टेज में उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने उसके दर्द को झलकाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की कि वो अपने पंखों को क्यों फड़फड़ा रही है। एंड इन द लास्ट स्टेंजा ही वांट टू शो अस दैट ही नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, कि उन्हें पता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया क्यों गुनगुना रही है, क्यों गा रही है। When his wing is bruised and his bosom sore, when he beats his paws and he would be free, it is not a carol of joy or glee, but a prayer that he sends from his heart deep core. तो इतनी लाइन, पहली लाइन में ये बताना चाहता है कि उसे पता है कि चिड़िया क्यों गा रही है, ऑल्दो उसकी जो पंख हैं वो क्या है, पूरे तरीके से छिल चुके हैं, ब्रूस्ड हो चुके हैं, उसकी चोटें काफ़ी बढ़ चुकी हैं,
फिर भी वो अपने पंख को फड़फड़ा रही है और बीट कर रही है बाहर से, ताकि वो फ्री हो जाए। इस लास्ट जब उन्होंने अपने फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की है, ही वॉन्ट्स टू गेट फ्रीडम, द बर्ड वॉन्ट्स टू गेट फ्री, चिड़िया फ्री होना चाहती है। वो जो गुनगुना रही है वो कोई खुशी के गीत नहीं गा रही। जैसे क्रिसमस के टाइम में कैरल सिंगिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हम एक गाने के थ्रू, माध्यम के थ्रू, हम उस गाने के माध्यम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आने वाला है, जीसस क्राइस्ट आने वाला है, इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो गाना गा रही है उसको कैरल से आप कंपेयर मत करिए कि कैरल सिंगिंग है या कोई खुशी की बात है या बहुत ही ज़्यादा वो खुश है, नहीं। बट क्या है, ये जो गाना वो गुनगुना रही है वो कहीं ना कहीं अपने दिल के गहराई से, दिल की गहराई के कोने से वो गा रही है। वो एक तरह की प्रेयर, एक तरह की प्रार्थना है जो वो अपने दिल से भेजना चाहती है एक अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को। इट्स बट अ प्ली दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। यहाँ पे जो है वो जो गुनगुना रही है वो कोई गाना नहीं है, वो कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि वो एक प्रार्थना है जो अपने परमेश्वर से कर रही है, जो कि आसमान में, स्वर्ग में जा बैठा है, जो उनकी बातों को सुन सके और उसे शायद फ्रीडम दिला सके। और इसीलिए जो पोएट है वो बहुत अवेयर इस पॉइंट से कि एक चिड़िया क्यों गुनगुना रही है। तो यहाँ पे एक बेसिकली एक बेस बना दिया गया है कि यहाँ पे एक पोएट जो है वो एक चिड़िया से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, जो कि एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोएट रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल राइटर रहे हैं। और जिस टाइम ये पोएम लिखी गई अर्ली 19th एंड लेट 20th की बात की जा रही है, लेट 19th एंड अर्ली 20th की बात की जा रही है। तो इस पोएट पोएम उन्होंने अपनी कोशिश की पूरी बताने की, जो पॉल लॉरेंस टर्नबर्ग, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि क्या होता है जब आपके पास सब कुछ हो बट फिर भी आप उसका इस्तेमाल ना कर सके, आप वो फ्रीडम ना मिले आपको, तो हाउ इट फील्स टू बी अ बर्ड बीइंग अ बर्ड स्टक इन अ केज। आई होप आपको इस पोएम की हर एक लाइन क्लियर हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ share as much as you guys can share my channel, my videos. Thank you for watching my video.